Hello, my dear students, and welcome to your favorite educational YouTube channel, Educator Prerna, or as you popularly know me as English वाली मैम. So आज के सेशन में हम करने वाले हैं the questions of the poem The Trees. So if we come down to page 100 of our textbook, we will be able to see the questions. तो पहला क्वेश्चन है फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा द थ्री थिंग्स दैट कैनॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट. आपको ऐसी तीन चीजें बतानी है जो एक ट्रीलेस मतलब जिस जहाँ पर ट्रीज बिल्कुल भी ना हो, ऐसे फॉरेस्ट में क्या चीजें हैं जो नहीं हो सकती ट्रीलेस फॉरेस्ट में. तो बहुत क्लियर है, नो बर्ड कुड सिट because there are no trees, no insect could hide because obviously again there are no trees, and no sun would bury its feet in shadow. ओके अब इस लाइन का मतलब जो है नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, इसको हम समझेंगे इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says, what picture do these words create in your mind? Sun bury its feet in shadow. What could the poet mean by the sun's feet? तो यहाँ पर poet जो है वो बताना चाह रहा है कि जो एक treeless forest है वहाँ पर अगर मतलब एक फॉरेस्ट जहाँ पर ट्रीज हैं ही नहीं, वहाँ पर सन रेज जो है वो तो डायरेक्ट ग्राउंड पर आएंगी, करेक्ट. बट अगर एक फॉरेस्ट में ट्रीज आ जाते हैं तो क्या होगा उस टाइम पर? जो ट्रीज हैं दे विल ब्लॉक द सन रेज, करेक्ट. तो जो सन के रेज हैं दे आर लाइक द फीट ऑफ द सन. ऑलराइट, सो क्या होगा? सन बरी इट्स फीट इन शैडो. सो जो सन है उसकी जो रेज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट. ऑलराइट, next, where are trees in the poem? The trees are in the poet's house. What do their roots, their leaves and their twigs do? इसके लिए we will go back to the poem. और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं the second stanza, the roots, they are working all night to disengage themselves. The leaves, what are they doing? They are straining towards the glass. And जो small twigs हैं they are stiff with exertion. Okay, let's come to the next question. What does the poet compare their branches to? branches हैं उनको किस के साथ कंपेयर किया गया है? have been compared to newly discharged patients. Okay, next question. How does the poet describe the moon at the beginning of the third stanza, at its end, and what causes this change? तो हम आते हैं on the third stanza. It says that the night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. तो यहाँ पर क्लियर है कि जो पोएट्स है उन्होंने डिस्क्राइब किया है that the moon is very shiny. okay, and जो मून लाइट है वो हर जगह जो है वो दिख रही है. द मून इज क्वाइट शाइनी है. अब बाद में क्या होता है? द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. तो मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे हमने सन के बारे में पढ़ा था कि सन की रेज जब ट्रीज पे गिरती हैं तो वो ब्लॉक कर देती हैं सन रेज को. इसी तरह जब फॉरेस्ट में ट्रीज आ जाएंगे तो जो ट्रीज हैं वो मून लाइट जो है, जो मून की रेज हैं उसको भी ब्लॉक कर देंगे. तो वो ऐसे लगता है दैट द मून इज ब्रोकन, मतलब वो जो रेज हैं वो कट के आ रही हैं, वो फुली ग्राउंड को टच नहीं कर रही हैं. सो ये जो चेंज है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि मून इज वेरी शाइनी एंड वेरी इट हैज अ वेरी ब्राइट लाइट, नाउ इट बिकम्स लाइक अ ब्रोकन मिरर. ये कैसे हुआ? बिकॉज नाउ द ट्रीज हैव मूव्ड फ्रॉम द पोएट्स हाउस to the forest, and इसी वजह से the change in the moon has become evident. All right, next, what happens to the house when the trees move out of it? So क्या हो रहा है यहाँ पर? जब trees जो है when they move out of the house, what happens? The glass is breaking, right? And there's a lot of strain on the things which are
नियर बाय एंड इसी के साथ क्या हो रहा है, जो पोएट है शी इज डिस्क्राइब दैट द ग्लास इज ब्रेकिंग हेयर एंड अलोंग विद दैट what has happened that the trees are moving towards the forest. Then why do you think the poet does not mention the departure of the forest in the house in her letters? तो जब हमने explanation पढ़ी थी इस poem की तब भी मैंने आपको बताया था that the reason being that the poetess probably wants to keep it a secret. She doesn't want that ये जो rebel trees ने किया है this should come out in open. That's the reason that she has not disclosed it. इसी के साथ एक और reason है जिसको हम समझ सकते हैं and that is that probably the poetess feels that all this time अगर हम सिर्फ ट्रीज की बात करें वी डू नॉट कंसिडर देम एज फीमेल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पोएम जब हमने पढ़ी थी दैट द पोएट्स probably feels that man or humans as such they have been very inconsiderate towards nature. उन्होंने कभी नेचर का ध्यान रखा ही नहीं तो it doesn't really matter to them कि अभी नेचर के साथ क्या हो रहा है. So even that could be one of the reasons कि जो poetess है she doesn't mention about the departure of the trees. Okay, next question. Now that you have read the poem in detail, we can begin to ask what the poet might mean. So first she talks about conflict between man and nature and then she talks about tiger in the zoo. तो यहाँ पर yes, this can be considered as one of the opinions क्योंकि हम बात कर रहे हैं about man trying to bound nature the way it wants to. जैसे कि टाइगर इन द जू में वो जो टाइगर है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट से हटाकर उसको एक जू में रखा गया है एंड द टाइगर फील्स वेरी सफोकेटेड. यही हाल जो है वो ट्रीज का है और इसीलिए दे जस्ट वांट टू मूव आउट ऑफ द हाउस एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट विच इज देयर अगेन नेचुरल हैबिटेट. और जो दूसरा पार्ट है दैट यूज ट्रीज एज मेटाफॉर फॉर ह्यूमन बींग्स. तो यहाँ पर मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था ऑफ फीमेल्स बींग रेफर टू दैट हाउ the poetess is trying to say that the female section of the society they want to free themselves from the shackles that they have been put into by the society. ओके तो ये तो हुए हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. नाउ लेट अस कम टू दी क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड. सो शॉर्ट क्वेश्चन. देखो बेटा हर एक स्टैंजा, मैं हमेशा बोलती हूँ हर पोएम का हर एक स्टैंजा इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगी अरे ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि किस एग्जामिनर है बेटा वो किसी भी स्टैंजा से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो हर एक स्टैंजा को इक्वली इम्पॉर्टेंट कंसिडर करके आपको चलना ही पड़ेगा. ये नहीं आ रही ये तो स्टैंजा में कुछ खास बात नहीं है सो आई कैन लीव इट. नो, देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टैंजा ऑफ द पोएम. So short answer questions. Give examples from the poem to show that trees have been personified. तो जितने बच्चों ने पोएम की एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा उन सबको पता है कि मैम ने बताया कि पर्सोनिफिकेशन इज अ पोएटिक डिवाइस जो इस पोएम में यूज किया गया है. नाउ यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन के क्या एग्जाम्पल हैं? द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, the trees inside are moving out into the house. So let me show you this line. Okay, the trees inside are moving in the house. So page number 99 पे जब आप आते हो you can have a look at this. इसी के साथ all night the roots work. Okay, यहाँ पर भी एक personification की का example दिया गया है. Alright, then if you come to the last stanza, the trees are stumbling forward. तो कई जगह आपको personified तरीके से trees को describe किया गया है poet ने. Alright, next, what does the line my head is full of whispers which tomorrow will be silent tell us about the poet's state of mind. So यहाँ पर poetess ये बता रही हैं कि I have a number of thoughts crisscrossing my mind, but
probably these thoughts are temporary. आज मैं इस बारे में सोच रही हूँ, but tomorrow I might not be thinking about this situation at all. और लॉन्ग आंसर टाइप में आपके पास टॉपिक आज जो टॉपिक्स हो सकते हैं क्वेश्चंस के, दैट कुड बी द नीड फॉर फ्रीडम, टेकिंग केयर ऑफ नेचर, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन नेचर रिबेल्स. यहाँ पर नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, टॉकिंग अबाउट रिबेल, हाउ नेचर रिबेल्स. अंडरस्टूड? ग्रेट. हम मिलेंगे इन द next session. Till then, stay blessed, and of course, do like, share and subscribe to Educator Prerna. Thank you.